Okay, hello everyone. Now today we are going to study about the particle, about the charge which is moving in the magnetic field. So we are having a charged particle which is moving in the magnetic field. So let us suppose we are having a charged particle, say plus q. एक plus q charged particle है and it's enter into the magnetic field और magnetic field की जो direction है it is downward to the plane है. Okay, then दिस पार्टिकल जैसे ही एंटर करेगा, इसकी वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं, से द वेलोसिटी इज v. तो जैसे ही ये एंटर करेगा एक फोर्स इसके ऊपर लगेगी विच टर्न इट्स मोशन. इसकी मोशन को क्या करेगी, जस्ट मेक इट इन अ सर्कुलर वे. मीन्स कि यहां से ये एंटर कर रहा है, इस पॉइंट ओ से एंटर कर रहा है, एक फोर्स इसके ऊपर लगी जो उसको क्या कर रही है, इट्स वांट टू गो लाइक दिस, ऐसे करके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फोर्स क्या कर रही है, इसको बैंड कर रही है. फिर यहाँ से इट्स ट्राई टू मूव्स अपवर्ड, लेकिन फिर से फोर्स क्या कर रही है, इट्स चेंज इट्स डायरेक्शन. यहाँ पे अगेन इट्स चेंज इट्स डायरेक्शन. ऐसे करके क्या हो रहा है कि द मोशन विल बिकम सेंट्रीपिटल. अब यहाँ पे इफ आई नोटिस कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इट इज टुवर्ड द सेंटर. ओके, these arrow shows the direction of the force which is toward the center. और ऐसी forces क्या होती हैं, these are the radial forces. Radial forces means के these are what, these are centripetal force. तो ये क्या है, centripetal force है. तो centripetal force है, so that means we can write इसका magnitude कितना होगा, the magnitude of this centripetal force will be mv square upon r. Okay, it is mv square upon r. और यहाँ पे जो m है, it is what, m is the mass of the particle. Okay, if I write कि जो ये m है, m क्या है, m equals to mass of particle. mass of particle कितना है, m है, and v equals to velocity of particle. v क्या है, उसकी velocity है particle की, and r is what, r is the radius. Okay, r is the radius of a circle. So these are the things which are, let me draw it little bit neatly. इसको थोड़ा सा neatly बना देते हैं, so that you can clearly understand this. So it will be, the motion will be in a circular motion. We can see कैसी motion है, circular motion like this. ये इसका सेंटर हो गया, दिस रेडियस इज हाउ मच, आर. यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, रेडियस की तरफ फोर्स डायरेक्टेड है, दिस इज द पार्टिकल. इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और पार्टिकल क्या है, प्लस q चार्ज है. सो दिस इज व्हाट इज गिवन. अब नाउ ये वाली जो फोर्स होगी, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स. दैट मीन्स जो ये फोर्स है, ये क्या है, इट इज अ मैग्नेट, इट इज व्हाट, इट इज द मैग्नेटिक फोर्स whose value is, whose magnitude is q v b. So we can write, in place of this we can write q v b equals to m v square upon r. So if I ask you कि what is the radius here, radius of that circle, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, the value of r will be m v square upon q v b. एक v cancel with one v, so we get m v upon q v. If I ask you what is the velocity, so from here we can also calculate the velocity. So velocity will be equals to q v r upon m. So this is the velocity. ये क्या आ गया उसका, this is the radius. Okay, if I ask you what is the kinetic energy of that particle, so we know that kinetic energy equals to half m v square. So it will be half will remain half, m will remain half. In place of v we can put q v r upon m का whole square. So on solving this, ke equals to half, और एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो we get q square v square and r square upon m. So this is the kinetic energy of the particle. Now if I ask you what is the time period,
what is the time period? Time period equals to displacement upon velocity. So time period अगर मैं निकालूंगा तो t equals to displacement. Displacement means कि पूरा का पूरा सर्कल, तो सर्कल is of circumference 2 pi r, and what is the velocity? The velocity is qvr upon m. So r get cancelled and we are left with 2 pi m upon qb. So we can write it here. जो q की t की जो वैल्यू आई है, the value of t will be how much? It will be 2 pi m upon qb. If I ask you what is the value of frequency, so frequency is reciprocal of time period, so we get qb upon 2 pi m. And what about the velocity? Velocity इसकी कितनी थी? So velocity will be equals to qvr upon m. Now if I see these three values 1, 2 and 3, these are the three values which we are getting. From these three values, this n and t, they are independent of radius. That means radius does not affect it. Radius का कोई effect इसके ऊपर नहीं आएगा. But this velocity is get affected by the radius. So velocity from here, from equation 3, तो velocity is directly proportional to radius. Velocity क्या है? Directly proportional to radius है. So it means कि if we increase the radius को अगर मैं increase करूँगा, if we increase the radius, then velocity of charged particle will increase. Okay, velocity of the charged particle will increase, but time period and its frequency remain unaffected. Okay, they remain unaffected. So what we have learned, we are discussing, एक बार फिर से देखो, we are discussing about the motion of the charged particle in the magnetic field. So एक charged particle है जो magnetic field के अंदर enter कर रहा है. कैसे enter कर रहा है? Perpendicular to the field. उसकी जो velocity की direction है, it is perpendicular to the direction of the field. Field की direction क्या है? It is downward to the plane. velocity क्या है? जस्ट इसकी परपेंडिकुलर है. पार्टिकल का मास कितना है? प्लस क्यू है. रेडियस कितना? रेडियस तो बाद में बनेगा. तो जैसे ही एंटर करेगा इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स. उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? QVB होगा. और ये QVB इसको क्या करेगा? इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा और इसको एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा देगा. ओके, दैट मीन्स जो पार्टिकल एंटर किया वो सर्कुलर पाथ में क्या करना स्टार्ट करेगा? मूव करना स्टार्ट करेगा, जिसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. और फोर्स की जो डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर. दीज आर व्हाट? दीज आर द रेडियल फोर्सेज. ये क्या होती हैं? रेडियल फोर्सेज होती हैं. और रेडियल फोर्सेज मीन्स कि वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है. सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है mv²/r. वी नो दैट यहाँ पे जो ये F होगी, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगा है. मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना है? QVB है. तो वी हैव इक्वेट दिस. तो यहाँ से मैंने R निकाला, V निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाली एंड फ्रीक्वेंसी निकाली और टाइम पीरियड निकाला. सो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दे आर अनअफेक्टेड बाय द रेडियस ऑफ द पाथ. बट अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करता हूं, इफ आई इंक्रीज द वेलोसिटी और इफ आई इंक्रीज द रेडियस, तो दोनों में से एक को इंक्रीज करता हूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. नाउ आफ्टर दिस, यहाँ पे तो पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है? यहाँ पर पार्टिकल एंटर कर रहा है विद द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द, उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे एंटर करता है, सपोज थीटा एंगल पे एंटर करता है, तो इन दैट केस व्हाट हैपन? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट. ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा? उसकी लीनियर वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. मीन्स कि उसको लीनियर वाइज डिस्टेंस कवर करना है. और
जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो उसके सर्कुलर डिस्टेंस, सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स के अब जो पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा, वो सर्कल में मूव करेगा बट लीनियर वे में भी डिस्टेंस मूव करेगा। मीन्स के ऐसे करके पार्टिकल मूव कर रहा है, मीन्स के लीनियर वाइज डिस्टेंस भी वो कवर करेगा और सर्कुलर वाइज डिस्टेंस भी वो मूव करेगा। तो मोशन कुछ कुछ ऐसी हो जाएगी। ओके, दैट मीन्स ऐसे करके सर्कल बनाते हुए आगे आगे करके पार्टिकल मूव करता हुआ जा रहा है, तो मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस। और इस तरह की मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये मोशन है इस तरह के हेलिक्स जो पाथ बनाया है इसने, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। एंड इस टाइप की जो मोशन है उनको हम लोग हेलिक्स मोशन बोलते हैं। सो दिस ऑल फॉर टुडे, सो जस्ट रिवाइज इट, आई प्रोवाइड यू द नोट्स एंड देन revise it. If you have any problem then ask me. So for today, thank you very much.